सर, टीसीएस कोलकाता भी अब कनेक्ट हो रहा है और वो भी अपनी बात यहाँ पर रखना चाह रहे हैं। आइए चलते हैं कोलकाता। बताइए। Respected Prime Minister, sir, thank you for this amazing vision that you've shared with us and also for the opportunity to interact with you. I'm Joy Deshmukh Randive और मैं TCS में CSR का काम देखती हूँ. It is indeed an honor to be able to interact with you and especially on this kind of a vision that you've shared with us. I'm happy to share the kind of work that we do with TCS. There's a lot of synchronicity in what you said and what we believe in, and it stems from the core values that our founder Sri Jamshedji Tata had given us. So we believe that the community is not just another stakeholder, but it is the very purpose of our existence. So business की नींव ही उस पे रखी हुई है. और दूसरी बात, at TCS we believe that when we can do something for the other, we are blessed. So it is not, in a sense, we are giving. And जैसे आपने कहा कि our volunteers, when we go out there, when we measure impact, we not only measure impact on the beneficiary, but the volunteers themselves come back empowered. And we work in the areas of education, health, environment. We work with marginalized groups in women's empowerment, with poverty, with groups that have never been able to access education or health or digital literacy. And here I have with me Sunil. I would have shared numbers with you, but just to give you two numbers, in the past 2 years itself, we have clocked about 10 lakh person hours of our associates who have gone out there into the field, who've gone into very remote areas in the country, and they have such a strong social heartbeat. So you wouldn't even say that they are, from a corporate world. But when they go out there, they're one with the community, they understand their problems, we sit and share, and we find the solution together with the community. And we've impacted about 15 lakh beneficiaries in the past 2 years in very many different ways. So Sunil here is one of our star people, and he will share one program just to highlight what I've been saying. Thanks, Joy. Thank you, Joy. Respected Prime Minister, it's a great privilege for me to talk to you about this program that we have developed 5 years ago, primarily touching the either two disadvantaged communities, marrying Digital India, Skill India, and women empowerment. We started in the district of Jhansi, touching 1,500 beneficiaries 4.5 years ago. And right now we are in around 19 districts, touching 80,000 beneficiaries. And going forward, we are aligning with the 100 aspirational districts that the Niti Aayog has given us direction for. At the core of this program, sir, is the creation of rural digital entrepreneurs, where as part of this project, each of them, we supply them laptops, some software and training, basis which they go to the government school in the village and run the computer-aided learning. They make the adults who are illiterate in the village literate through the TCS, adult literacy software, and then run, basis the CSC policy of the Department of IT, digital services for the community they come from. The excitement in the whole project, sir, is from the ground. Now, we have numbers of students who are withdrawing admissions from the private school and coming to the government school. We have a young mother who now tells us post her literacy that her son looks at her differently because when he does his homework, because he knows she understands something about what he is doing. A young daughter-in-law told us that her mother-in-law involves her much more now post her literacy in the decision-making of the home. But the greatest transformation, sir, is in these 240 digital entrepreneurs. 100 of them are women, and in the localities that we have deployed this, they have become stars in those villages. In fact, the women have bought scooters and then... सवाल पूछना चाहे तो आपका सवाल? Yeah, so my question, sir, is what can we do more
to realize the India for dreams, to include the excluded. Thank you very much Thank for you. this time. हमारे देश में उस व्यवस्था पर हमको पहुंचना ही होगा कि जिसमें हर किसी को समान अधिकार हो और समान अवसर हो। इस लक्ष्य को पार करना एक सबसे पहला उसका घोष वाक्य है इंक्लूजन के लिए। आपने देखा होगा जो ये जो साउथ कोरिया ने मुझे आज अवार्ड दिया है, उसकी एक जो महत्वपूर्ण पहलू है वो ये है कि भारत ने पिछले 4 साल में इंक्लूजन के लिए जो इनिशिएटिव लिए हैं वो दुनिया के लिए बहुत ही बड़े महत्वपूर्ण है। उसको रिकग्नाइज किया है उन्होंने, जो अलग अलग पैरामीटर्स में एक पैरामीटर है इंक्लूजन। और इसलिए बात सही है आपकी, हमारे देश के अंदर अगर इतनी बड़ी मानव शक्ति या हमारे संसाधन उनका अगर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं है, उनका अगर आवश्यकता के अनुसार ग्रोथ नहीं हो रहा है, उनका व्यक्तिगत विकास नहीं हो रहा है, तो समाज की, देश की आगे बढ़ने की गति में उनका हमें उनकी मदद मिलती नहीं है। उनको अगर हम जोड़ते हैं, उनको अगर साथ लेते हैं तो वो बोझ नहीं होता है, वो एक प्रकार से ताकत बन जाता है। छोटा सा परिवार हो, परिवार में भी एक पुरुष मेहनत करता है, कमाता है, लेकिन मान लीजिए वहाँ परिवार में महिला को एक छोटा सा काम मिल जाता है 2 घंटे 3 घंटे का, तो परिवार की आय में बढ़ोतरी हो जाती है, उसको ज़रा बाहर एक्सपोजर मिल जाता है, उसका परिवार को चलाने के तौर तरीके में बदलाव आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस व्यवस्था के अंदर उसका जुड़ाव हो गया, वरना वो आइसोलेटेड थी, 2 टाइम खाना, घर की सफाई, कपड़े धोना, उसी में लगी रही थी उसकी ज़िंदगी भर। तो एक एक्स्ट्रा शक्ति जो थी वो हमारी प्रोडक्टिव शक्ति में हमने कन्वर्ट कर दी। जैसे एक सामान्य परिवार में होता है वैसा ही समाज की व्यवस्था में होता है। और इसलिए अब जैसे हिंदुस्तान में आप देखें कि भारत का पश्चिमी छोर इकोनॉमिकली वाइब्रेंट नजर आता है, लेकिन भारत का पूर्वी छोर जो प्राकृतिक रूप से समृद्ध है, वहाँ लोग सामर्थ्यवान हैं। आज देश में देखिए IAS IPS की भरमार आपको ईस्टर्न इंडिया से मिलती है, लेकिन इकोनॉमिकली हम डेवलप क्यों? क्योंकि देश इस प्रकार से एक जो सबका साथ सबका विकास मेरा मंत्र इसलिए है कि अगर पश्चिम का हिंदुस्तान विकसित हो रहा है तो उसी बराबरी पूर्वी हिंदुस्तान भी होना चाहिए। आसाम हो, बंगाल हो, बिहार हो, हमारा नॉर्थ ईस्ट हो, आप कल्पना कर सकते हैं देश की। तो एक तो देश का ज्योग्राफिकल एरिया, उसका भी इंक्लूजन होना चाहिए डेवलपमेंट। यहाँ बढ़िया बढ़िया रोड बने और वहाँ गांव में सड़क ही ना हो, तो ये नहीं चल सकता। इसलिए आपने देखा होगा हमारे 4 साल के शासन की प्रायोरिटी में इसको है। उसी प्रकार से बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ किसके लिए? गरीबों के लिए। बैंक अमीरों के पास नहीं होनी चाहिए, ऐसे सारे भाषण हमने सुने थे, लेकिन इस देश के 40% लोग बैंकिंग व्यवस्था से ही बाहर थे। आज हिंदुस्तान की, दुनिया के हर देश में इकोनॉमी के बैकबोन में बैंकिंग सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के द्वारा एक देश भर में अभियान चलाया, गरीब से गरीब को कहा कि बैंक एयर कंडीशन मकान भले होगा, तुम्हारा उतना ही हक है वहां जाने का। इस देश में इतनी बड़ी साथ है, करोड़ों परिवार जनधन अकाउंट से जुड़े। और जब अकाउंट खोला था तब हमने कहा था कि 0 कॉस्ट से हम अकाउंट खोलेंगे, 0 बैलेंस से अकाउंट खोलेंगे, एक भी पैसा नहीं लेंगे। अभियान चलाया। लेकिन देखिए कभी कभी हम अमीरों की गरीबी देखते हैं, लेकिन कभी कभी गरीबों की अमीरी भी देखने को मिल जाती है। अमीरों की गरीबी कई बार नजर आती है, गरीबों की अमीरी पर देखें तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। इस देश के गरीबों को कहा था आपका कोई बैंक बैलेंस नहीं होगा तो भी बैंक अकाउंट खुलेगा। आज इन गरीबों ने करीब करीब 80,000 करोड़ रुपए की बचत करके बैंकों में जमा किया है। ये उनके लिए बहुत बड़ी अमानत बनेगी। अब ये उनके जीवन को बदलाव आना शुरू होता है। मैं समझता हूं कि हमने समाज के इसी वर्ग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शिक्षा सबसे बड़ा आरंभिक आधार होता है।
अगर हमें सामाजिक मूवमेंट चलानी थी वहाँ शिक्षा के द्वारा हम परिवर्तन लाते हैं तो उनको साथ जोड़ने का दरवाज़ा खुल जाता है। इन दिनों आपने मार्क किया होगा देश में कैसे बदलाव आ रहा है। हमारे देश के सोशल साइंटिस्टों ने इस पर रिसर्च करना चाहिए, लिखना चाहिए। पहले 10th 12th के रिजल्ट आते थे तो बड़े शहर की बड़ी स्कूल, एयर कंडीशन स्कूल के बच्चे आते थे। आज टायर 2 टायर 3 सिटी के गरीब के बच्चे आते हैं। तो अखबार में जब पढ़ते हैं कि पिताजी ऑटो रिक्शा चलाती हैं और बेटी बोर्ड के अंदर प्रथम नंबर के लेकर के आ गई, हम देखते हैं। इन दिनों एशिया के जो गेम्स हुए, जितने हमारे विनर्स हैं उसमें से 80% झुग्गी झोपड़ी में पैदा हुए बच्चे हैं जी। कल्पना की होगी किसी ने उनके न्यूट्रिशन की भी चिंता नहीं की होगी, न उनको वो न्यूट्रिशन मिला होगा जो एक स्पोर्ट्समैन को चाहिए। एक स्टेज आने के बाद उनको ट्रेनिंग मिली और उसी जिंदगी से गुजर करके आए हुए बच्चों ने देश का नाम रोशन कर दिया। क्यों? ये इंक्लूजन का जो प्रयास है उसी का परिणाम है कि जिन तरफ कभी कैमरा नहीं लगा था, जिस तरफ नजर नहीं गई थी, उनको तरफ गई। आप भी इसको कर सकते हैं। एक काम और कर सकते हैं जो शायद प्रेरणा दे सकता है, जिसको आनंद जी ने जो सवाल पूछा था उसके साथ भी जोड़ा जा सकता है। आप भी जो इंक्लूजन की बात करते हैं, अल्टीमेटली एक इंस्पिरेशनल मूवमेंट की जरूरत है। क्या हम लोग, और मैं चाहता हूं आईटी प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों से, वो खास कहता हूं आईआईटी से जुड़े हुए, हमारे देश में आप चारों तरफ जाइए, नकारात्मकता, नेगेटिविटी इतना तूफान खड़ा हो चुका है कि उसमें आप उलझ जाते हैं। अच्छा, अगर 24 घंटे टीवी देखें तो साहब आपको लगेगा इस देश में रह ही नहीं सकते। टीवी के स्क्रीन के बाहर भी बहुत बड़ा हिंदुस्तान है। टीवी के स्क्रीन के बाहर भी हिंदुस्तान के लिए जीने मरने वाले लोग हैं। क्या हम एक काम कर सकते हैं? और मैं चाहूँगा कि ये जो हमारा सेल्फ फॉर सर्विस वाला पोर्टल है उसमें एक ऐसी व्यवस्था खड़ी की जाए जिसमें पॉजिटिव इंस्पिरेशनल न्यूज़ शेयर किए जाए। हमने देखा, सुना, डाल दिया। देखिए देश में एक बहुत बड़ा माहौल बन जाएगा पॉजिटिविटी का। ये भी कोई मैं समझता हूँ सोशल स्टार्टअप के रूप में काम उठा करके इस सेल्फ फॉर सर्विस के साथ जोड़ करके ये भी इंक्लूजन के लिए ताकत बन सकता है। क्योंकि एक गरीब जब सुनता है कि भाई एक गरीब ने एक काम किया दूसरे को, हमारे देश में चोरी की घटनाएं फ्रंट पे छपती होगी, लेकिन एक ऑटो रिक्शा वाला 10 लाख की थैली को भूल गया, जाकर के वापस देखने के लिए दिन भर उसको खोजता रहता है कि नोट किसके थे। उससे बड़ी प्रेरणा क्या हो सकती है? वो भी तो हमारा ही देश का नागरिक है। और इसलिए ये चीजें इंक्लूजन के लिए औरों को काम करने के लिए प्रेरणा देती है। मैं चाहूंगा कि समाज के जिन लोगों को अवसर नहीं मिला है, किसी में पोटेंशियल कम नहीं होता है जी, हर एक में पोटेंशियल भरपूर होता है, अवसर की कमी होती है। हम अगर उंगली पकड़ करके ले आएं, वो परिवर्तन ला करके देता है। मैं आपको बधाई देता हूं, आपने इस फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ साथ, सोशल इंक्लूजन के साथ साथ जो समाज में पीछे रह गए हैं उनको बराबरी में लाने का जो बीड़ा उठाया है। आपको ईश्वर बहुत ताकत दे, सफलता दे। बहुत धन्यवाद।